ਹੈਲੋ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਇਲਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਦੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਾਸਕ 2 ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਂਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਂਡ ਕੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਦੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਐਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਹਾਈ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਐਂਡ ਟੀਚਰਸ ਆਰ ਲੀਵਿੰਗ ਦੇਅਰ ਓਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ। ਵਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਜ਼ ਦਿਸ ਕਾਊਜ਼, ਵਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਗਰ ਜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਐਂਡ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਵਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਾਸਕ 2 ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸੇ ਵੈਲ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਸਕ ਵਿੱਚ ਦੈਨ ਸਮਝੋ ਕਿ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਸਕੋਰ ਪੱਕੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਸਕੋਰ ਆਪਣੇ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ, ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮੇਨ ਹੈਗੀਆਂ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਪੈਸਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਕੁਐਸਚਨ ਫਾਰਮ, ਸਿੰਪਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਫਰੇਸ ਪਲੱਸ ਥੀਸੀ ਲਾਈਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ BP1, BP2 ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਤਾਂ BP1 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਨ, ਟਾਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ BP2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਸੇ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਿਖੋਗੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਓਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਓਗੇ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਐਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵਰਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੀਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫਰੋਮ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੀਵਿੰਗ ਦੇਅਰ ਓਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ ਨੇਟਿਵ, ਨੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਅਨਦਰ ਨੇਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਗੈਟ ਬੈਟਰ ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। ਆਪਾਂ ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਵਰਕ ਇਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਸ ਐਂਡ ਟੀਚਰਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਰਕ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਰੀਫਰੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਨਦਰ ਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਰਡਰ ਟੂ ਗੈਟ ਬੈਟਰ ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰੀਫਰੇਸ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੀਸੀ ਲਾਈਨ ਦਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੀਸੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਲਦੋ ਦਿਸ ਟਰੈਂਡ ਗਿਵਸ ਬਰਥ ਟੂ ਸੈਵਰਲ ਥੀਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਲਦੋ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੈਟ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਲਦੋ ਯੈਟ ਲਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਲਦੋ ਦਿਸ ਟਰੈਂਡ ਗਿਵਸ ਬਰਥ ਟੂ ਸੈਵਰਲ ਥੀਰੀਜ਼ ਜਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੈਨ ਟੈਕਲ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਮ ਐਕਸ਼ਨਸ। ਚਾਹੇ ਕੀ ਆ ਇਹ ਟਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਗਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਥੀਸੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਥੀਸੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਲਦੋ ਯੈਟ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਟਾਈਪ ਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਰੀਫਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੂ ਕਮੈਂਸ ਵਿਦ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨੈਕਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨੈਕਟਰ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਸਕ ਦੇ ਲਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਦੋਂ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਨੈਕਟਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, BP1 ਔਰ BP2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਟਰੈਂਡ ਵੁੱਡ ਕਾਊਜ਼ ਸਮ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫॉर ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ, ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪੂਅਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਮੇਨ ਟਾਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਟਾਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ,
ठीक है। तो वो दिने हैगे फस्ट ऑफ ऑल लगा दिता कनैक्टर पीपल बींग, ठीक है, बींग हुंदा होना, डिप्रिव्ड हुंदा वांझे रह जाना, ठीक है, किसी चीज़ तो रह जाना। तो की है पीपल बींग डिप्रिव्ड ऑफ एजुकेशन एंड मैडिकल सिस्टम, कि लोग की है वांझे रह जाएंगे एजुकेशन तो एज वैल एज मैडिकल सिस्टम तो, दोनों तो, ठीक है। मैडिकल सिस्टम डॉक्टर के नाल रिलेट करता हो गया और जो टीचिंग हो गया वो अपना टीचर के नाल हो गया, ठीक है, क्योंकि आप मेनली अज गल ही टीचर और डॉक्टर्स की कर रहे हैं ताकि आप उस जानी कि उही आप फैसिलिटीज़ वगैरह से जी प्रॉब्लम देवांगे, ठीक है। तो इसलिए आप दसते कि डिप्रिव्ड रह जाएंगे वो एजुकेशन एंड मैडिकल सिस्टम तो। उस तो बाद की है एक्सप्लेन कर लगे हैं, टू एक्सप्लेन इट, मतलब कि इन्हू एक्सप्लेन करना। इफ़, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस लगा देता, इफ़ द टीचर एंड हैल्थ एक्सपर्ट्स मूव टू डेवलपमेंटेशन, अगर की आ जो टीचर्स एंड हैल्थ एक्सपर्ट्स ये वकैब आ, ठीक है, थोड़ी जो आप टीचर एजुकेटर लगा रहे हैं, ठीक है, और ऑन दी अदर साइड आप डॉक्टर्स के लिए डॉक्टर फिजिशियंस हैल्थ एक्सपर्ट्स, ठीक है, वकैब वर्ड है। तो ये अपनी वकैब कवर होंगी है। वकैब भी अगर तुसी मतलब रिच वकैब के नाल लिखते हैं ऐसे तो थोड़े जेह्ड़े स्कोर बूस्ट होंगे हैं। तो अपने को की हैगा आप लिख दिता हुण कंडीशनल सेंटेंस, ये भी वेरीएशन है, कंपलैक्स भी पा दिता और कंडीशनल भी पा दिता। तो की होगा अगर जो टीचर एंड हैल्थ एक्सपर्ट्स जे मतलब जा रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंटेशन वाल नूं मूव कर रहे हैं, देयर वुड बी नो ऑप्शन फॉर पुअर पीपल टू गैट एन एजुकेशन एज वैल एज गुड ट्रीटमेंट। तो फिर की पुअर लोगों को कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगी कि वो की गुड एजुकेशन लै सकन एज वैल एज की ट्रीटमेंट लै सकन, ठीक है, गुड ट्रीटमेंट लै सकन, ना कि वो अपना इलाज करा सकते हैं, ना कि वो जी कोई एजुकेशन वधिया लै सकते हैं, ठीक है, पुअर लोग। तो देखो आप स्पैशली पुअर लोगों की गल की हैगी कि अगर एक नेशन की जिदा कि कोई जोड़े एक्सपर्ट्स है लाइक टीचर डॉक्टर्स है ना, वो मूव कर जाएंगे होर जी कंट्रीज़ नूं, तो जी उत्थों के गरीब लोग आ उन्होंने ना तो जी एजुकेशन वधिया मिलेगी ना वधिया ट्रीटमेंट मिलेगा। तो ये चीज़ आप जी इत्थे कही हैगी, ठीक है। ये हो गया अपनी बेसिक लाइन, टास्क स्टेटमेंट एंड एलैबोरेशन, ठीक है। हुण अपने की एग्जाम्पल एंड रिजल्ट रह गया 2 पॉइंट्स, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, ठीक है, कि एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अ सर्वे वॉज कंडक्ट बाय इंडियन मैगजीन, ठीक है, कि एक सर्वे जो कंडक्ट होया सीगा इंडियन मैगजीन के द्वारा इन 2014 फाउंड दैट 70% इंडियन स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू गैट हायर एजुकेशन ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ एक्सपर्ट्स प्रोफैसर। तो ठीक है, प्रोफैसर वर्ड भी जोड़ा तुसी टीचर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप की कह दिता गा कि इंडियन मैगजीन ने एक जो सर्वे कंडक्ट किया सीगा उहदे विच की कीता गा उन्होंने 70% इंडियन स्टूडेंट्स एबल नहीं है। देखो हुण तुसीं कह भी सकते हैं जिद्दां अजकल अपने काफ़ी जो ट्रेंड चल रहा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है वो कि अब्रॉड जा रहे हैं एजुकेशन के लिए ही जा रहे हैं ना, तो इसलिए एजुकेशन आप कह सकते हैं कि इंडिया के उन्होंने बैटर एजुकेशन नहीं मिल रही हैगी, जां इंडियन स्टूडेंट्स जोड़े एबल नहीं है बैटर एजुकेशन लैन के लिए। क्यों? क्योंकि जोड़े प्रोफैसरस जोड़े है एक्सपर्ट प्रोफैसर है वो की आ मूव हो गए हैं, ठीक है। तो उस तो अगे अपना आ गया रिजल्ट, ठीक है। एज अ रिजल्ट देखो सारे जिन्ने भी पॉइंट्स दे रहे हैं मतलब बेसिक लाइन, ठीक है, टास्क स्टेटमेंट एलैबोरेशन एग्जाम्पल, ठीक है, रिजल्ट तो एक दूसरे के नाल रिलेट करते होने चाहिए, कनैक्टर्स लगा सकते हैं तुसीं कनैक्टिविटी के लिए, ठीक है। एज अ रिजल्ट हुण रिजल्ट कर दिता दिस इज़ डेंजरस फॉर न्यू जनरेशन, कि न्यू जनरेशन के लिए डेंजरस है बिकॉज वो दोनों तो डिप्रिव्ड रह जाएंगे ना मैडिकल सिस्टम तो ना एजुकेशन तो, ठीक है, तो दोनों चीज़ों के लिए कि डेंजरस है उन्होंने। ये होगी अपनी प्रॉब्लम, ठीक है। हुण आप सल्यूशन दसांगे, एक प्रॉब्लम दसी है दैन एक सल्यूशन ही दसांगे, ठीक है। तो देखो कंपलैक्स भी ऐड कर रहे हैं आप जो कंडीशन सेंटेंस भी ऐड कर देते, उस तो बाद वकैब का भी आप पूरा ध्यान रख रहे हैं और स्ट्रक्चर का भी रख रहे हैं, कनैक्टर्स भी यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके नाल वैल ऑर्गेनाइज करके ऐसे लिखा करो अपना, ठीक है। तो उस तो अगे हुण अपने को सल्यूशन आ गए। तो सल्यूशन च की कह रहे हैं टू डील विद दिस चैलेंजिस, ठीक है, कि इस चैलेंज के नाल डील करने लई कनैक्टर लगा देता। द गवर्नमेंट हैज़ मैनी ऑप्शनस, कि गवर्नमेंट को काफ़ी ऑप्शनस है। ये होगी अपनी बेसिक लाइन। दैन की अपनी आएगी टास्क स्टेटमेंट। फर्स्टली अथॉरिटी शुड इंक्रीज द मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अलॉन्ग विद हाई वेजेस फॉर बोथ टूटर्स एंड डॉक्टर्स, ठीक है। टूटर्स वर्ड जो टीचर के लिए यूज़ होता वकैब जी नोट कर लिया करो नाल दी नाल। तो अपने को है जी अथॉरिटी आ पहले तो बेसिक लाइन के दस दिता कि इस चैलेंजिस को डील करने के लिए की है जी गवर्नमेंट को काफ़ी ऑप्शनस है, ठीक है। उस तो बाद आप जी टास्क स्टेटमेंट दी आ कि गवर्नमेंट को करना की चाहिए। एक जगह पर गवर्नमेंट लिखता दूसरी जगह पर अथॉरिटी लिख दो, ठीक है, इहदा सिनोनिम। तो अपने को किया अथॉरिटी शुड इंक्रीज द मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कि अथॉरिटी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जी इंक्रीज करनिया चाहिए अलॉन्ग विद कादे नाल हाई वेजेस, ठीक है, कि सैलरी वधिया होनी चाहिए फॉर बोथ टूटर्स एज वैल एज डॉक्टर्स। उस तो अगे किया
टू एलैबोरेटेड मतलब कि सपोर्ट करना, जो तुसी आइडिया दिता उन्होंने सपोर्ट करो। हाई वेजेस आर नॉट ओनली बेनीफिशियल फॉर सिंगल इंडिविजुअल बट ऑलसो हैल्प इन डेवलपिंग नेशनस इकोनॉमी। ठीक है कि ये एक परसन के लिए ही हैल्पफुल नहीं होएगी जी वधिया जी हाई सैलरी होएगी, वो ऑलसो की होगी नेशन की इकोनॉमी में हैल्प बूस्ट करने भी हेल्प करेगी। तो ये आप एलैबोरेशन कर दी। उस तो बाद की है ये एग्जाम्पल देनी आ। एक गल का ध्यान रखना, जो कनैक्टर्स तुसी BP1 ਦੇ ਵਿੱਚ यूज़ कर ਦਿੱਤੇ ਆ ट्राई करो कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BP2 ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं यूज़ करना, मतलब BP2 ਦੇ ਲਈ 5 ਤੁਹਾਨੂੰ डिफरेंट कनैक्टर्स चाहिए आ। ठीक है उस तो अगे की है फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, देखो तुसी सर्वे भी ऐड कर सकते। काफ़ी जो स्टूडेंट्स ने ये की प्रॉब्लम है मतलब एग्जाम्पल देने कि कोई कह रहा है कि कोई सर्वे नहीं ऐड करना। ठीक है तो कुछ नहीं है इदा का कि तुसी ये चीज़ नहीं ऐड कर सकते, तुसी कर सकते हैं। ठीक है सर्वे भी ऐड कर सकते, कोई रिसर्च हैगी वो भी ऐड कर सकते हैं, ईवन कोई फ्यूचर प्रडिक्शन भी है वो भी कर सकते हैं। ठीक है जो तुसी कह सकते कि इदा की जी प्रडिक्ट किया गया फ्यूचर के बारे, वो चीज़ भी तुसी जी फ्यूचर प्रडिक्शन भी ऐड कर सकते हैं एग्जाम्पल के। बस की एक एग्जाम्पल पर्सनल नहीं होनी चाहिए, एक एग्जाम्पल की है जी थोड़े आइडिया के नाल रिलेट करती होनी चाहिए। ये नहीं कि एग्जाम्पल के तुसी कुछ होर ही दस रहे हो और अब थोड़ा आइडिया कुछ होर कह रहा, बस इस चीज़ का ध्यान रखना होंदा। अकॉर्डिंग टू सर्वे, एक सर्वे के अकॉर्डिंग ठीक है 70% टीचर हैव लैस वेजिज। ठीक है कि 70% जो टीचर 70% टीचर जोड़े है उन्होंने को लैस वेजिज आ एज कंपेयर टू वर्ड हैगा जोड़ा आप कंपैरिजन करने के लिए लगाने हैं। एक सेंटेंस स्ट्रक्चर अपने को कंपलैक्स। ठीक है कंपलैक्स सेंटेंस जो कि आप किसी चीज़ का कंपैरिजन करना होंगे आप लिखते हैं एज कंपेयर टू। टीचर हैव लैस वेजिज एज कंपेयर टू एन ऑर्डनरी शॉपकीपर। ठीक है ऑर्डनरी शॉपकीपर जोड़े आम शॉपकीपर हैगा उस तो भी जो टीचर्स की आ 70% टीचर जिन्हों की लैस वेज हैगी आ इन अंडर डेवलप नेशन। ठीक है जोड़े अंडर डेवलप हैगे आ उन्होंने नेशनस के। ठीक है उस तो बाद अपनी एग्जाम्पल होगी देन की है अपना जो रिजल्ट आएगा। हैंस आफ्टर रिसीविंग गुड पेमेंट्स। ठीक है जोड़े गुड पेमेंट्स रिसीव करने तो बाद की है जोड़े प्रोफैशनल्स विल नॉट रिलाई ऑन अदर वैल्थी कंट्रीज़ फॉर द जॉब्स। ठीक है जिदा डॉक्टर्स टीचर जोड़े है तो वो की है रिलाई नहीं होंगे होर कंट्रीज़ से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लिए, क्योंकि उन्होंने वही जी चीज़ अपनी कंट्री के मिल रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही और वधिया सैलरी तो मिल रही हैं, तो फिर वो की है होर कंट्रीज़ वाल मूव करने का नहीं सोचणगे। ठीक है ये अपना रिजल्ट निकलता अगर जे गवर्नमेंट ये चीज़ कर देंदी है। उस तो बाद अपने को कनकलूजन आ गया। कनकलूजन के काफ़ी स्टूडेंट्स ये चीज़ का जोड़ा करते हैं मिसटेक कि जो उन्होंने BP1 के नहीं लिख मतलब जिदा BP1 के जो लिखता BP2 जो लिखता। ठीक है और जो कनकलूजन के लिखणगे ना वो एक डिफरेंट आइडिया ले आएंगे जोड़ा कि ना BP1 के गल की है ना BP2 गल की है, तो थोड़ा फुली जो टास्क रिस्पॉन्स जो वीक कर देगा। ठीक है तो तुसी की कनकलूजन के उही चीज़ को रीफ्रेस करके लिखना है जो तुसी BP1 और BP2 के गल करे आए हो। ठीक है तो हुण दसदे हैं माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। ठीक है आप स्किल्ड वर्कर यूज़ कर दिता दोनों के लिए, टीचर्स के लिए और डॉक्टर्स के लिए। विल लीड टू पुअर ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर नेशन। ठीक है ये लीड करेगा एक पुअर ग्रोथ में। ऑफकोर्स पुअर ग्रोथ है अगर की है जे लोगों ना मैडिकल सिस्टम वधिया मिलेगा ना फिर एजुकेशन वधिया मिलेगी तो की है एक पुअर ग्रोथ में जो लीड करूगी। ठीक है तो आप कह दिता कि जो माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड वर्कर्स विल लीड टू पुअर ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, पर की है जी प्रॉब्लम की है सॉल्व की जा सकती है बाय इंक्रीजिंग वेजिस एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है तो आप पैसिव भी जोड़ा ऐड कर दिता लास्ट कि सॉल्व बाय इंक्रीजिंग वेजिस एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज़ कि वर्क अपॉर्चुनिटीज़ और जी मतलब कि सैलरीज ना उन्होंने इंक्रीज़ करके ये जी प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता जी कि माइग्रेशन हो रही है। ठीक है प्रॉब्लम की है माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड वर्कर्स जिन की प्रॉब्लम आऊगी जो डिप्रेव्ड रह जाएंगे लोग, पुअर ग्रोथ होगी। ठीक है नेशन की तो आप सोल्यूशन की दिता कि वर्क अपॉर्चुनिटीज़ जड़ियाँ इंप्रूव करनियाँ चाहिए वेजिस के नाल। तो ये अपना जो फुल सैंपल आंसर सीगा। ठीक है प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन ऐसे। ठीक है तो राइटिंग क्लास जो बैच अपना 15 मार्च तो स्टार्ट हो रहा। ठीक है जो स्टूडेंट्स जोड़े है विलिंग क्लास लैन के लिए तो जो गिवन नंबर पर कंटैक्ट कर सकते हैं। आई होप अज की वीडियो थोड़ी इनफॉर्मेटिव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।